Morning students. Today we are going to learn fun with grammar. Okay, in today's class we will study about articles and how to use the word a and an. So let's start today's class. The words a and an are called articles. They are used before singular nouns. A is used before words that begins with a consonant or consonant sound. So what are articles? The word a and an, they are called articles. Okay, and the word a and an, they are used before singular nouns. So singular nouns means that is only one. Okay, not more than one. Anything that is one. For example, one boy, one girl. Okay, like this. A is used before words that begin with consonant or consonant sound. So any word that begins, that starts with a consonant letter or it has a consonant sound, basically consonant sound. Okay, then we use the letter A before it. So before proceeding, let's understand what are consonants and what are vowels. Okay, so here I have written it for you. Vowels, A, E, I, O, U, they are called vowels. Okay, and what are vowel sound? A, E, U, A, O, So if you are getting a sound of a or like this, then we call them vowel sounds, and the vowels are A, E, I, O, U. What are consonants? All the letters except these, they fall under consonants. Okay, and all the vyanjan, in Hindi we have swara and vyanjan, so all the vyanjans, they give a consonant sound. Okay, तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स कौन से वर्ड्स होते हैं? ए और एन जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं. ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे एक वचन की बात हो रही हो. एक की बात, सिंगुलर का मतलब एक वचन. ठीक है, जैसे कि कोई भी संज्ञा अगर एक वचन में है, एक है, जैसे एक लड़का, एक लड़की, एक गाय, तो वो सिंगुलर कहलाती है. वहाँ पे हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, जिनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं. ए का हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर कोई भी अक्षर जो है, वर्ड, अगर आपका कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से, मेनली हम कॉन्सोनेंट के साउंड को देखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे ए लगाया जाता है. आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और एक वोवल्स होते हैं, वो क्या होते हैं. तो आइए देखते हैं. वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू को जो है वोवल्स कहा जाता है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Today we are going to learn fun with grammar. Okay, in today's class we will study about articles and how to use the word a and an. So let's start today's class. The words a and an are called articles. They are used before singular nouns. A is used before words that begins with a consonant or consonant sound. So what are articles? The word a and an, they are called articles. Okay, and the word a and an, they are used before singular nouns. So singular nouns means that is only one. Okay, not more than one. Anything that is one. For example, one boy, one girl. Okay, like this. A is used before words that begin with consonant or consonant sound. So any word that begins, that starts with a consonant letter or it has a consonant sound, basically consonant sound. Okay, then we use the letter A before it. So before proceeding, let's understand what are consonants and what are vowels. Okay, so here I have written it for you.
vowels. A, E, I, O, U, they are called vowels. Okay, and what are vowel sound? A, E, U, A, O, So if you are getting a sound of a or like this, then we call them vowel sounds, and the vowels are A, E, I, O, U. What are consonants? All the letters except these, they fall under consonants. Okay, and all the vyanjan, in Hindi we have swar and vyanjan, so all the vyanjans they give a consonant sound. Okay, तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स कौन से वर्ड्स होते हैं? ए और एन जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं. ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे एक वचन की बात हो रही हो. एक की बात, सिंगुलर का मतलब एक वचन. ठीक है, जैसे कि कोई भी संज्ञा अगर एक वचन में है, एक है, जैसे एक लड़का, एक लड़की, एक गाय, तो वो सिंगुलर कहलाती है. वहाँ पे हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, जिनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं. ए का हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर कोई भी अक्षर जो है, वर्ड, अगर आपका कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से, मेनली हम कॉन्सोनेंट के साउंड को देखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे ए लगाया जाता है. आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और एक वोवल्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो आइए, और वोवल्स की साउंड कैसे होती है? जो स्वर होते हैं ना बेटा, आ, ई, ऊ, ए, ओ, तो अगर आपको किसी भी वर्ड के आगे स्टार्टिंग इन साउंड से लग रही हो ना, तो वो वोवल साउंड्स में आ जाते हैं. और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट्स में आते हैं. और अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करें तो जो हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, वो वाले व्यंजन वो कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, या मेन हम साउंड्स को देखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको ए का यूज़ करना है. जैसे कि देखो, मैं बुक यहाँ रख के आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखो बॉय है, तो ये ब साउंड आ रहा है और बी से स्टार्ट हो रहा है. तो दोनों साउंड को पहले देखना है, साउंड को. ब, तो ब क्या है? इसमें आ रहा है कहीं ब? नहीं आ रहा ना. और ये देखो बी, ये कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है, इसलिए आपने ए लगाया है. बर्ड्स, ब से स्टार्ट हो रहा है, ए लगाना है. मैंगो, म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ए लगाना है. तो ये सारे जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स है उसमें, तो ये जो है आपको यहाँ पे ए का यूज़ करना है. ओके, An is used before words that begin with a vowel or a vowel sound. So you should use an when any word it begins with a vowel sound. So I have already told you vowels A, E, I, O, U. They are vowels and the vowel sounds are all these words. Okay. जो स्वर होते हैं ना हिंदी में, आ, ई, ऊ, तो वैसी आवाज़ आ रही है तो उसको देखना है. तो मेन है कि साउंड्स को देखना है आपको, साउंड्स को. ठीक है, जैसे एग है, एग, तो अ से स्टार्ट हो रहा है तो एन. एप्पल, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन. एलिफेंट, ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन. तो इसमें सारे स्वर की साउंड आ रही है, वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एन लगाया है. ओके, fill in the blanks with A and N. It is dash banyan tree. So you have to check this word, banyan, banyan. So the sound is b. So it fall under consonant. So you have to write A. Tiger is dash animal, a, animal, a is there, so an. Okay, it is a vowel and the sound is vowel sound, so you have to write an. Dash ostrich, ostrich, the sound is o, so it is a vowel
sound, so write an is a dash bird, bird, so you have to write A. The man with the hat is dash American, American, so you have to write an. I will take dash R, so we read this R, okay. H is silent, so R, it is starting with a, although H is not a vowel, okay. You can see here H is not there, so it is not a vowel, but you have to check the sound. So the sound is R, so a, so it is, we have to write an, okay. Like this you have to write. तो बेटा जब आपका ना वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, या वोवल से स्टार्ट हो रहा है, मेन हम वोवल की साउंड देखते हैं. साउंड, वोवल साउंड कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, जो स्वर होते हैं वो वोवल साउंड में आते हैं. तो ऐसे वर्ड्स जो वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आपको एन लगाना है. जैसे आपका एग, ए से स्टार्ट हो रहा है एन. एप्पल, ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन. एलिफेंट, ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन, ओके. तो वोवल साउंड है इन सब में, इसलिए. फिलिप्स, इट इज़ अ बनियान ट्री, ये एक बनियान ट्री है. तो ब, बनियान, ब, तो ब क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए लगाया है. टाइगर इज डैश एनिमल, टाइगर एक जानवर है. अ, एनिमल, ए, तो एन लगाया है. डैश ऑस्ट्रिच इज डैश बर्ड, ओ से स्टार्ट हो रहा है और साउंड भी ओ की आ रही है इसलिए एन लगाया है, क्योंकि ये एक वोवल साउंड है. बर्ड, ब से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने, कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए लगाया है. द मैन विद द हैट इज डैश अमेरिकन, वो आदमी जिसके पास हैट है, हैट में है वो आदमी, हैट लगा रखी है, वो एक अमेरिकन है, अमेरिकी है. ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगाया है. ए वोवल साउंड है ना, ए, इसलिए एन लगाया है. आई विल टेक डैश आर टू फिनिश दिस वर्क, इसको आर बोलते हैं, आर, ठीक है. तो एच यहाँ पे साइलेंट है और साउंड देखनी है, साउंड आपको देखनी है आर, आर, तो अ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगाया है, ओके. सो लाइक दिस यू हैव टू डू. सो आई होप you understood today's class. Practice this. Thank you so much. Have a nice day. Bye.